Purchasing power parity, it is method of measuring the relative purchasing power of currencies of a different country. PPI has been found for more useful for comparing difference in living standard also among the nation. ठीक है. So here we have completed this topic. आप इसे देख सकते हैं डिटेल. Based on per capita income also, but this is abandoned by the most of the international organizations because it was a giving of misleading pictures. ये misleading pictures दे रहा था. It is well known that the purchasing power of a different kind of currencies varies substantially. For example, $1 ठीक है can buy far fewer goods and services in United States. ठीक है. Then ₹50, which is equivalent to $1 can do in India. Therefore, by investing Indian currency equivalent to $1,000 can have a much better standard of living in India than that in USA by investing the same amount. ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे अगर उनकी $1 की वो करेंसी अगर यूज करें तो यहाँ से ज़्यादा उनको चीज़ें वो खरीद सकते हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है एज अगर वो लोग यूएसए में उसको इन्वेस्ट करें तो एज कंपेयर जबकि हम लोग यूएसए में उस पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करें तब. 25.5 Regional development imbalances and socio-economic disparities in India. We have discussed about that the efforts made for socio-economic development in India have been aimed at holistic development of all religions of a country. मतलब ये holistic development of all religions इस पे इन्होंने फोकस किया. Discussed about that efforts made for the socio-economic development. Socio-economic development करने के लिए जो efforts लगाए in India have been aimed, उसका aim ये था at holistic development of all religions, ठीक है, of a country. In fact, one of the major objective of development planning initiated immediately after independence has been reduction of general disparities by the promoting the development of all religions. सारे religions को develop करने के लिए promote करना start किया. The planning and implementation process have focused on approach of religion development. Planning and implementation process have focused on approach of regional development. Regional development के ऊपर वर्क प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट हुआ. ये प्रोसेस स्टार्ट हुई, फोकस करना स्टार्ट किया कि रीजनल डेवलपमेंट हो. बट वन ऑफ द क्रिटिकल प्रॉब्लम फेसिंग इंडियाज इकोनॉमी इज अ शार्प एंड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस अमंग डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम बन के रहा. इंडिया की इकोनॉमी इज अ शार्प एंड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में. देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस व्हिच आर ऑलरेडी क्रिएटेड बाय नेचर. ठीक है, कुछ नेचर से क्रिएट हुए सर्टेन डिफरेंसेस है. फॉर एग्जांपल जैसे कि यू मे फाइंड इन द फिगर बिलो दैट फिगर नंबर 25.4, ठीक है, यहाँ पे है डाइवर्सिटी. सम एरियाज हैव प्लेन टोपोग्राफी, fertile alluvial soil and abundance of water like Indigo Ganga plain, whereas there are certain areas which have hilly terrains, dense forest cover and less fertile soil. मतलब किसी एरिया में अच्छी fertile soil है जहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, किसी एरियाज में इस तरीके से fertile soil नहीं है, वो forest region टाइप आ रहा है. ठीक है, different this difference created by the nature are called regional diversity. इसको हम लोग regional diversities बोल सकते हैं कि वहाँ पे सॉइल वैसे बेटर नहीं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर कुछ किया जा सके. बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस दैट आर ह्यूमन मेड. कुछ ह्यूमन मेड डिफरेंसेस भी है, जैसे कि these differences or inequalities are related to indicators like per capita income, agriculture growth, industrial growth, expansion of transport and communication facilities, literacy of a status of health. ठीक है, ये सारे पार्ट हैं जो ह्यूमन ने खुद ने क्रिएट किए हुए हैं. ठीक है, the human made differences are or inequalities between regions are known as disparities. इसको हम लोग disparities बोलते हैं जो human made होते हैं. ठीक है, between region. ठीक है, you may understand disparity in a better way when you observe figure of number 25.5. 25.5 वाला जो है, ठीक है, ये वाला disparity और यहाँ पे diversity, किस तरीके से दोनों में difference बताया हुआ है. Understand disparity in a better way when you figure. And this disparities that are cause of concern. Let us analyze and try to understand disparities in respect of following. इसको आप देख के पता कर सकते हैं. ठीक है, किस तरीके से because of natural issues कि एक पर्सन जो है वो
बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर सॉइल, ठीक है, सॉइल अच्छी न होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहा है, और कुछ एरियाज में अच्छी सॉइल है तो वहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर किया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है डिस्पैरिटीज, ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि इसकी वजह से क्या फायदा होगा, ऐसे में रहने से क्या फायदा होगा, मतलब अगर प्रॉपर ये जो बुल इनको यूज कर जो बैल होते हैं उनको यूज कर वो एग्रीकल्चर करेगा तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस कितना टाइम इन्वेस्ट रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर वो ट्रैक्टर यूज कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो उसका जो एग्रीकल्चर है वो जल्दी होगा, उसको ज्यादा इनकम भी वो जनरेट कर पाएगा और टाइम कंज्यूम कम होगा, ठीक है, मतलब अगर लैंड अच्छा है, ठीक है, तो लैंड अच्छा है तो अच्छी एग्रीकल्चर देखने मिलेगी, लैंड अगर अच्छी नहीं है, सॉइल अगर अच्छी नहीं है तो उसे ऐसी जमीन अगर उपजाऊ नहीं होगी तो उसको प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये कुछ डिस्पैरिटीज इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे नेचुरली और यहाँ पे नेचुरली नहीं बट ह्यूमन मेड है, ठीक है। Disparities in India, per capita income is essence, ये disparities हैं, जैसे कि per capita income है, essence for the level of economic activity in the region. There are very wide regional disparities in the per capita income. For the year 2005 and 6, national average of per capita income was 25,716. There were only 11 states which had per capita income higher than the national average. National average जो था उसमें से कुछ 7 ही states थे, 11 states which have a per capita income higher, जो higher था than the national average. Bottom 7 poorest states बताए that had a per capita income below the national average. वो national average से below था, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये सारे states जो है वो below रहे। These states are home to more than half of India's population. प्रॉपर्टी की बात करें, स्टेट वाइज प्रॉपर्टी रेशियोज हैव विटनेस्ड अ डिक्लाइन ओवर द इयर्स। थ्रू प्रॉपर्टी हैज डिक्लाइंड एट अ माइक्रो लेवल, रूरल अर्बन इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज आर कंटिन्यूइंग, ठीक है। स्टेट वाइज प्रॉपर्टी देखे जाते हैं रेशियो हैव विटनेस्ड अ डिक्लाइन ओवर द इयर्स, ठीक है, ये विटनेस है, ये पता है कि बहुत सालों से ये देखने मिल रहा है। स्टेट वाइज प्रॉपर्टी मतलब बिलो प्रॉपर्टी लाइन पे जो है, थ्रू प्रॉपर्टी हैज डिक्लाइंड द माइक्रो लेवल पे डिक्लाइन हुई है। रूरल अर्बन एंड इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज आर कंटिन्यूइंग, इसमें से रूरल अर्बन और इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज जो है कंटिन्यू हो ही रही है। द प्रॉपर्टी रेशियो इज स्टिल रिलेटिवली हाई इन ओडिशा, प्रॉपर्टी रेशियो ओडिशा में हाई है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, इन सारों में प्रॉपर्टी लेवल जो हाई है। प्रॉपर्टी रेट्स इन रूरल ओडिशा 43% एंड रूरल बिहार 40% आर सम ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। On the other hand, rural Haryana 5.7, rural Punjab 2.4 compare well even at a global level with some of the middle income countries. इस तरीके से प्रॉपर्टी अफेक्ट कर रहा है, ये भी यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है, ये भी एक पार्ट है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इंडिया वाज डिटरमाइंड बाय द हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ derived primarily by the interest of British rulers. As a result, most of the industries were concentrated at a few centers. This pattern has continued in the post-independence period as well as despite all attempts made so far to expand the process of industrialization of various regions. ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इतना इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोग को कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो कुछ इनकम अर्न कर पाएंगे, ठीक है। इनकम अर्न की तो वो क्या करेंगे कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इतना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर ग्रोथ देखें तो रीजनल डिस्पैरिटीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ हैव इंक्रीज्ड ओवर इयर्स विद स्टेट ऑफ पंजाब है, रीजनल डिस्पैरिटीज भी देखने मिली थी इन द एग्रीकल्चर ग्रोथ हैव इंक्रीज्ड हुआ ओवर द ईयर, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश परस्यूइंग वेल हेड ऑफ अदर्स। A per capita average food grain production has been highest in the Punjab. Per capita average food grain production जो था वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसमें था, पंजाब में था, एंड लोवेस्ट था इन द केरला। मिजोरम एंड महाराष्ट्र आर द लोएस्ट लेवल इन द रिस्पेक्ट ऑफ इरिगेटेड एरियाज।
और मिजोरम और महाराष्ट्र भी है, वो भी एकदम कम लोएस्ट लेवल है रिस्पेक्ट ऑफ इरिगेटेड एरियाज में। States like Punjab, Haryana achieved high rate of agricultural productivity because of having extensive irrigation facilities. क्योंकि उनके पास अच्छा एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है और एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स एग्रीकल्चर ग्रोथ इज येट टू पिक अप द नीडेड पेस एंड कम टू देयर पोटेंशियल। अभी बहुत सारे स्टेट्स में बाकी है कि इस तरीके से चेंज देखने को मिले। लिटरेसी इट इज वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। But there are a great disparities in respect in various regions. According to the census 2001, literacy rate is the highest in Kerala, Kerala में सबसे highest था, and lowest in the Bihar, Bihar में सबसे कम literacy rate था, where all Indian average of literacy rate was 65.38%. It was 90.92% in Kerala and only 47.53% in Bihar. There are significant variations among the rest of the states also. इसके अलावा भी दूसरे states में various vast difference देखने मिलता था। Transport and communications देखें तो transport and communication in India are various types. The common form of transportation is roadway, railway, airways and waterways. When you look at the data in the respect of even one of these, you may appreciate the prevailing disparities. For example, in the respect of road length, there are some states that are at a very advanced level, whereas there are some in the which the road situation is very poor. ठीक है, इसमें भी बहुत सारे disparities देखने मिले, जैसे कि बहुत सारे states में बहुत अच्छे roads available हैं, ठीक है, roads transportation के लिए helpful जो होते हैं, और कुछ ऐसे areas ऐसे हैं जहाँ पे situation बहुत खराब है, very poor. With regard to the road length per 100 km, Kerala tops the list, whereas the state of Jammu and Kashmir is in the bottom. ठीक है, केरला टॉप कर रहा है इस लिस्ट में और जम्मू कश्मीर जो है वो एकदम बॉटम लेवल पे है। So here we have completed these 6 topics. Disparities in India. Causes of regional disparities. Whenever we try to identify the reasons for regional imbalance, various reasons, we tend to think that population growth, illiteracy, lack of basic infrastructure and responsible for underdevelopment of certain states. ठीक है, मतलब जब ये चीजें फाइंड आउट करने का ट्राई किया, हम लोगों ने रीजंस फाइंड आउट किए कि क्यों कोई पर्टिकुलर रीजन मतलब वो इम्बैलेंस क्यों है। ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर रीजंस, वो रीजन जो है वो उसका क्यों इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसका एक सीधा कारण, ये कुछ कारण मिलते हैं, कारण है, रीजंस मिलते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ होना। ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन और वहां पे सामने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर भी वो लोग सफर करेंगे। ठीक है, इलिटरेसी, अब ज्यादा पॉपुलेशन होगी और वहां पे स्कूल्स मतलब ज्यादा अगर बच्चे हैं और स्कूल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम होगा। सो इलिटरेट जो लोग होते हैं, ठीक है, मतलब अनएजुकेटेड लोग, उसके वजह से भी बहुत सारे एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो अंडर डेवलप्ड रहता है। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने की वजह से, ठीक है, तो हॉस्पिटल, स्कूल्स, ठीक है, आर रिस्पांसिबल फॉर अंडर डेवलपमेंट। ये अंडर डेवलपमेंट है कुछ सर्टेन स्टेट्स का। बट we analyze these reasons further, we find that these factors are not only the reasons of underdevelopment in a backward state but also its outcome. सिर्फ ये रीजन ही नहीं, इसके जो आउटकम है वो भी इसका एक कारण है। फॉर एग्जाम्पल, there has been unabated population growth, prevalence of illiteracy and lack of basic infrastructure in many underdeveloped states, primarily because the socio-economic development has not taken place in a way it has taken place in other forward states. ठीक है, मतलब ये सारे चीजों ने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन सारे एरियाज में अच्छे से क्यों नहीं देखने मिल रहा है एज कंपेयर के दूसरे रीजंस में। इन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्टिविटीज, अच्छी तरीके से वर्क किया हुआ होता है और इन एरियाज में इतने अच्छे तरीके से एक्टिविटीज प्लान नहीं हुई होती है। ठीक है, हैज नॉट टेकन प्लेस इन अ वे इट हैज टेकन प्लेस इन द अदर फॉरवर्ड स्टेट। जो दूसरी फॉरवर्ड स्टेट है जिसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उन सारे स्टेट्स में अच्छी तरीके से प्लान करके वो सारे एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट किया गया, बट इंस्टेड कि ये वाले स्टेट्स में अच्छी तरीके से प्लान आउट नहीं हुआ, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, पार्टिसिपेशन नहीं देखने मिला, इस वजह से ये अंडर डेवलप रहते हैं। It is therefore
interesting to analyze the following major causes of regional disparities. Let's see these causes. First one is historical perspective. During the colonial rule in the pre-independence era, the areas which were not important from commercial or political angles received little attention and remained underdeveloped. Those areas still continue to be ignored by entrepreneurs. The most prominent among such areas are the tribal areas of a central and northern eastern India. ठीक है? क्यों? Colonial rule के टाइम क्या था? In the pre-independence time era, उस टाइम में the areas which were not important from commercial or political angles, ठीक है? ऐसे areas जो commercially और politically वो areas में वर्क नहीं किया गया, एक्टिविटीज नहीं की, इंपॉर्टेंट नहीं लगे, ठीक है, इस वजह से उस पर अटेंशन इतना नहीं दिया गया, ठीक है, रिमेन अंडरडेवलप्ड। और वो एरियाज क्या होते हैं कि वो अंडरडेवलप्ड रह जाते हैं, ऐसे एरियाज कि जहां पे जैसे कि कॉमर्शियल पर्पस, मतलब वो अगर कोई इंडस्ट्री डालनी है तो इंडस्ट्री डालने के पीछे उधर उस एरियाज में बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे, इसलिए उस एरिया पे ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, इसलिए उस जगह पे इंडस्ट्री नहीं डाली गई। पर उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट न मिलने के कारण उस एरिया के जो लोग हैं उन लोग को इनकम जनरेट ही नहीं हुई, तो वो एरिया डेवलप हो ही नहीं रहा है, वो जो एरिया है वो अंडर डेवलप्ड रह रहा है, ठीक है। सेम एज अ पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए, ठीक है, रिसीव्ड लिटिल अटेंशन एंड रिमेन्ड अंडरडेवलप्ड, और वो जो एरियाज है इसलिए उनको अटेंशन नहीं दिया जाता है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है और वो अंडरडेवलप्ड रहते हैं। दोस एरियाज स्टिल कंटिन्यू टू बी इग्नोर्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स भी इन एरियाज को इग्नोर करते रहते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग सच एरियाज आर द ट्राइबल एरियाज ऑफ अ सेंट्रल एंड नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया। इन्होंने बता दिया है एरियाज लाइक ट्राइबल एरियाज एंड सेंट्रल एंड नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया। Geographical factors कैसे होते हैं? Topography of a region can constrain its development. The desert region of Rajasthan and difficult hilly terrains of northern eastern regions are example of such cases. Geographical factor भी मैटर करते हैं, ठीक है। Topography of a region can constrain its development. Topography अगर हो रीजन की तो क्या होता है, वो भी एक कारण बन सकता है डेवलपमेंट का। The desert region of Rajasthan है जैसे कि, ठीक है, तो डेजर्ट रीजन में इतना ज्यादा मतलब पॉपुलेशन रहना प्रीफर नहीं करती है, ठीक है, लोग वहां पर रहते नहीं हैं, ठीक है। राजस्थान है, डिफिकल्ट हिली ट्रेन्स ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न, हिली एरियाज में लोग कम रहते हैं, तो ये जो सारे पार्ट है वो डेवलप नहीं हो पाते, तो ये अंडर डेवलप रहते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएशन इन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सही तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन न होना and variation in the use of natural resources, okay, uses में variations होते रहना। As you may be aware, natural resources like coal, iron ore, oil, natural gas and other are not available in all the states, ठीक है, ये ऐसे जो natural resources है वो सारे states में available नहीं होते हैं in all the states, but this availability alone has not ensured the development of such states. There are certain states that have made good use of this privilege, but other like Bihar, Jharkhand, Orissa have not been able to do so. मतलब सही तरीके से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल न होना, एक प्रॉपर वे में उस रिसोर्सेज का अगर यूज ना हो, ठीक है, यूटिलाइज न किए जाए तो वो रिसोर्सेज जो है वो वेस्टफुल साबित होते हैं, ठीक है। तो ये जो एरियाज है इन लोगों में इन एरियाज में, इन जो स्टेट्स में सही तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिला, वेरिएशंस देखने मिले, ठीक है, इस वजह से भी एरियाज जो है अंडर डेवलप रहते हैं। ये कॉजेस है सारे, ठीक है, कॉज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज जो होती हैं उसके कुछ कारण इन्होंने बता के रखे हैं, ठीक है। उसके बाद है रिमोट एरियाज फ्रॉम नेशनल मार्केट्स। द डिस्टेंस ऑफ द रीजन फ्रॉम द नेशनल मार्केट्स हैव आल्सो बीन अफेक्टेड। डिस्टेंस फ्रॉम अ रीजन फ्रॉम द नेशनल मार्केट्स have also affected the development of economy in those areas, especially the north and eastern region, making it difficult to alert their growth process, ठीक है। मतलब अगर मार्केट नेशनल मार्केट से अगर वो रीजन थोड़ा आउटसाइड पड़ रहा है, ठीक है, नियर बाय एरियाज है तो वो अच्छे से डेवलप हो पाते हैं, अच्छी सारी चीजों को, सारे
जो थिंग्स है उनको इजीली वो लोग परचेस कर पाते हैं, स्पेंड कर पाते हैं, तो इकोनॉमी ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है एम्प्लॉयमेंट की, तो वो एरिया जो क्या होगा डेवलप्ड होता रहेगा क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। बट जो आउट ऑफ मतलब सिटी एरिया, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिटी एरिया जो जाते हैं, ठीक है, तो वैसे सारे एरियाज में क्या होता है, रिमोट एरियाज वैसे मतलब कि आउट ऑफ सिटी, मतलब वो कोई वैसे एरियाज में रहने वाले वो लोग ज्यादा चीजों का क्या बोलते हैं, ज्यादा यूज नहीं कर पाते, ठीक है, उनको इतने सारे एडवांस चीजें नहीं मिल पाती है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से वो अंडर डेवलप रहते हैं। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द स्टेट दैट हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड, electricity and transportation facilities have made speedy progress in terms of socio-economic development, ठीक है, अगर सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी न मिले तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने नहीं मिलता है, प्रोग्रेस देखने नहीं मिलता है। अगर ऐसे एरियाज में रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, तो ये सारी अच्छी मिले तो ये एरियाज डेवलप होंगे, नहीं मिले तो क्या होंगे, प्रोसेस जो है वो धीरे हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट के कच्चे रोड पे से एक गाड़ी जा रही है और एक पक्के रोड से जा रही है, तो बट ऑब्वियस है कि पक्के रोड से जो गाड़ी जाने वाली है, जो जा रही है, उसका वर्किंग प्रोग्रेस गुड रहेगा, क्वालिटेटिव रहेगा और स्पीडी रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू जो कच्चे रास्ते से जा रहे हैं वो गाड़ी। तो ये हर तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, ये सारी चीजें। So infrastructure also plays an important role. Poor governance, the most important factor that influences socio-economic development is the quality of governance. You may observe that the states that have moved forward have had the spell of good governance for most of the periods. On the other hand, almost all the backward states are those that have not been able to develop basic infrastructure, have been struggling with the law and order problems, and have not been able to make optimum utilization of natural resources allocated by planning commission, ठीक है, उन रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन भी न होना जो कि गवर्नमेंट ने प्लान किया हो, तो वैसे एरियाज सफर करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अगर क्वालिटी, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी सही तरीके से ना फॉलो हो तो भी एरिया जो है अंडर डेवलप रह सकता है। यू मे ऑब्जर्व दैट द स्टेट्स दैट हैव मूव्ड फॉरवर्ड हैड द स्पेल ऑफ गुड गवर्नेंस फॉर द मोस्ट ऑफ द पीरियड्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑलमोस्ट ऑल द बैकवर्ड स्टेट्स आर दोज दैट हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे एरियाज जो बैकवर्ड स्टेट्स है वो ऐसे हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाए हैं, नॉट एबल टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हैव टू बी स्ट्रगलिंग with the law and order problems and have not been able to make optimum utilization of natural resources. National resources का properly utilization ना हुआ हो तब allocation of planning commission. The poor governance has also been discouraged and private investors to set up the industries or to pursue any other productive activities in those cities. ये situation भी देखने मिलती है. So here we have completed this topic also. Let's move to 25.6, disadvantaged groups of society. As we have been emphasizing in this lesson, the ultimate goal of the socio-economic development has been to ensure that all the sections, to ensure that all the sections of society are enabled to be a part of development process. All must have equal access to outcome of the development and equal opportunities for upward economic and social mobility. Although it is said that India has been making notable progress, India क्या कर रही है? Notable progress कर रही है. This goal of reaching the development outcome is yet to be attained by all. There are many population groups that are till today discriminated both socially and economically. ऐसे बहुत सारे groups अभी भी देखने मिलते हैं, population group, ठीक है, and are not able to participate freely and fully in the development process. और वो लोग part fully नहीं करते हैं, freely और fully development में participate नहीं कर पाते हैं development process में। वो जो activities
जो प्लान की गई होती है उनमें पार्ट नहीं करते हैं, to reap its benefits. This is known as disadvantaged group. ये ऐसे सारे ग्रुप्स को disadvantaged group बोलते हैं. Some of such groups are scheduled caste, मतलब कि जैसे scheduled caste लोग जो होते हैं SC वाले, scheduled tribes होते हैं ST वाले, other backward classes होते हैं OBCs, minorities में आते हैं, women हैं. According to the census of India 2001, SCs constitute 16.23% and STs constitute 8.2% respectively. Minorities and other backward classes also have significant share. उन लोग का भी significant share है, दूसरे backward classes जो है उनका भी. Whereas women constitute almost half of the Indian population. We shall discuss the efforts for the empowerment of scheduled castes, scheduled tribes, and women. The Indian population. We shall discuss the efforts फॉर द एम्पावरमेंट. हम लोग एम्पावरमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस ले सकते हैं ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन्स. के इकोनॉमी सब लोग के लिए मतलब सारे के लिए इक्वल रहे, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, हर एक को उनकी अपॉर्चुनिटीज जो उनको मिलनी चाहिए, उनके जो हक में आता है उन सभी को उनका पार्ट प्रॉपर्ली मिले, ठीक है. 25.7 Empowerment of scheduled caste and scheduled tribes population. The urgent need of empowerment of scheduled caste and scheduled tribes in the country was realized in the India on the eve of independence. ठीक है, ये तब पता चला at the eve of independence. Empowerment of scheduled caste and scheduled tribes in the country was realized in India in the eve of independence to reduce the regional disparities. And regional disparities को reduce करने के लिए uplift the status of the communities. इन communities का status बढ़ाने के लिए Constitution of India makes a group. This groups, ठीक है, makes a number of communities under its various provisions. That is provisions for the development of these groups. इन groups का development करने के लिए Constitution ने क्या किया? Constitution of India makes a number of communities बना दी, commitments बनाए under its various provisions. कुछ various provisions में ये commitment बनाए गए, कुछ न कुछ provision बनाए इन लोगों के लिए for the development of these groups, इन groups का development करने के लिए. 25.7 Empowerment of scheduled caste and scheduled tribes population. The urgent need of empowerment of scheduled caste and scheduled tribes in the country was realized in India on the eve of independence. ठीक है, इनका जो empowerment urgent need of empowerment कब पता चला scheduled caste और scheduled tribes की was realized in at the eve of independence to reduce the regional disparities को reduce करने के लिए and uplift the status of this communities, और ये communities का status कुछ बढ़ाने के लिए. Constitution of India makes a number of commitments under its various provisions. इन provisions के अंदर बहुत सारे commitment किए गए, various provisions बनाए गए to development of these groups. इन groups को develop करने के लिए. Towards fulfilling the commitments, the government of India has adopted a three-pronged strategy of social empowerment करना, economic empowerment करना, and social justice to ensure removal of disparities. Social justice भी to ensure removal of disparities बनाना, elimination of exploitation and superstition, and to provide protection to this advantaged group. ठीक है, इनको protection भी मिलना. ठीक है, उसके बाद है social empowerment देखते हैं. Education being the most effective instrument for the socio-economic empowerment and disadvantaged group has higher priority, continues to be accorded to the improve the educational status of these groups. ठीक है, ये एक important part बनकर रह गया कि किसी भी मतलब not only for these groups, मतलब किसी भी group का अगर उनको develop करना है, उनका status increase करना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी this is the most important part for all of them to improve. ठीक है, उन सभी ग्रुप को improve करने के लिए एजुकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है. ठीक है, तो एजुकेशनल स्टेटस बढ़ाने के लिए इन लोगों को एजुकेशन देने का प्रायोरिटी दिया गया. कंटिन्यूज टू बी अकॉर्डिंग विद द इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दिस ग्रुप. फॉलोइंग मेजर्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्री एजुकेशन देना, various incentives in the form of abolition of tuition fee देना, free supply of books
मिड डे मील देना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना. स्पेशल फोकस हैज आल्सो बीन ऑन एसटी स्टूडेंट्स इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय एंड नेशनल टैलेंट सर्च स्मिथ. ठीक है, इन सारे अलग अलग स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इस किसी न किसी तरीके से इन लोगों को अट्रैक्ट करना और इनको एजुकेशन देना, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली इनको इंपॉर्टेंस, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है. ये इन स्कूल्स में जाते हैं जस्ट ओनली फॉर दिस थिंग्स के मतलब इन लोगों को मतलब सब कुछ इनको कुछ मिल रहा है, राइट. मतलब इन लोगों को क्या होता है, एजुकेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है. वो लोग क्या चाहते हैं, मतलब उनको कुछ सामने अगर मिल रहा होता है तो ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है.